تذکرائے روز و شب پر فکر زندگی جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری۔ اتوار 18 مئی 2025 اور جے کے بینک کے آفیشیل براڈ کاسٹ جے کے بینک ڈائری کا ایپیسوڈ نمبر 1234 یعنی 1234 میں آپ کا استقبال اور ہاردک ابھینندن۔ 26 اگست 2001 سے شروع کیے گئے اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش رہتی ہے کہ بینکنگ، فنانس اور انشورنس اور ان سے جڑے دیگر موضوعات پر بات کی جائے تاکہ آپ جانکار اور فنانشلی لٹریٹ بنیں۔ یہ آپ کی محبتوں اور سماعتوں کا ہی نتیجہ ہے۔ پچھلے لگ بھگ 24 سالوں سے ہم لگاتار اس پروگرام کو بڑی محنت سے تیار کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے آبھاری ہیں۔ آپ یوں ہی ہمیں اپنا پیار اور ساتھ دیتے رہے تاکہ آواز کا یہ سفر جاری و ساری رہے۔ آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گے کئی سارے موضوعات، لیکن شروعات اداریہ سے۔ دوستو، گزشتہ دنوں جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن یعنی جے کے بوس اور سینٹرل بورڈ آف اسکول ایجوکیشن یعنی CBSE نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کے ریزلٹس ڈکلیئر کیے، جن میں طلبہ و طالبات کی ایک بڑی تعداد کامیاب قرار دی گئی۔ اور ایک خاص بات جو ان ریزلٹس سے سامنے آئی وہ تھی ان ریزلٹس میں حاصل میرٹ، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بچے قابل ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے کانسیپٹس اچھی طرح سے سمجھ کر بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ان کے اپنے خواب ہیں، سپنے ہیں، خواہشات ہیں، ارادے ہیں جنہیں اڑنے کے لیے پنکھ درکار ہیں۔ جموں کشمیر بینک تمام کامیاب امیدواروں کو فرداً مبارکباد پیش کرتا ہے اور ایسے بچوں کے والدین کو بھی تہہ دل سے مبارک۔ ساتھ ہی جو بچے اب کی بار کسی وجہ سے ان امتحانات کو کلیئر نہیں کر پائے، وہ انٹروسپیکٹ کریں کہ کہاں غلطی ہوئی، کہاں کمی رہ گئی اور کہاں چوک رہی کہ اب کی بار نیا پار نہیں ہو پائی۔ ان غلطیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے تاکہ اگلی بار وہ بھی کامیاب ہو جائیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو روایتی طور پر ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں، جو کسی طور غلط نہیں ہے، لیکن سب ڈاکٹر اور انجینئر بن جائیں یہ بھی ممکن نہیں۔ پچھلے چند سالوں کے نیٹ اور JEE امتحانات کو دیکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ میرٹ بہت ہائی رہتا ہے، جس سے بہت سارے بچوں کے سپنے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو جناب، ایسے میں مایوس ہونے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ قابل ہے اور اس میں کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو اس کا حوصلہ بنیے، اسے سہارا دیجیے، اس کی ہمت بڑھائیے اور اس کا سپنا پورا کرنے کے لیے آپ بھی سامنے آئیے۔ جموں کشمیر بینک ایک بہت بڑی فیملی ہے جس میں آپ بھی ہماری طرح شامل ہیں۔ جب فیملی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو گھر کے بڑے ایک دوسرے کے ساتھ صلاح و مشورہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کسی اچھے اور بھروسے مند کاؤنسلر یا ایڈمیشن کنسلٹنٹ سے مشورہ کیجیے، اپنے بچوں کی آنکھوں کے خواب پڑھیے اور انہیں پورا کرنے کا ارادہ کیجیے۔ پیسے کا انتظام جموں کشمیر بینک کرے گا، اور وہ بھی کفایتی انٹرسٹ ریٹس اور آسان شرائط پر۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، پائلٹ یا وکیل بننا چاہتا ہے، کمپیوٹر سائنسز یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اپنا نام کمانا چاہتا ہے، بزنس اسٹڈیز یا ہیومینٹیز کے فیلڈز میں انٹروڈیوس نئے کورسز کرنے کا خواہش مند ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کیجیے اور آج ہی اپنے مالی صلاح کار جموں کشمیر بینک سے رابطہ کیجیے تاکہ وقت رہتے لون کی فارمیلٹیز پورا ہوں اور وقت پر پیسے میسر ہو۔ جے کے بینک کی ایجوکیشن لون اسکیم مقامی، اندرونی ملک اور بیرون ملک پڑھائی کے لیے دستیاب ہے، جو آپ کی ضرورتوں کا بھرپور خیال رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے۔ اپنا اور بچوں کا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، کہیں انتظار کرتے کرتے ہم موقع ہاتھ سے نہ گوا دیں۔ آج ہی رابطہ کریں اور اپنے آنے والے کل کو جے کے بینک کے ساتھ روشن بنائیے۔ دوستو، پچھلے کچھ وقت سے فائنینشیل فراڈز میں میول اکاؤنٹس کا بار بار ذکر آتا ہے، اور حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ جموں کشمیر پولیس نے 7,000 سے بھی زائد ایسے اکاؤنٹس بند کروا دیے اور قانونی کارروائی شروع کی۔ کیا ہیں یہ میول اکاؤنٹس اور ان کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے؟ جاننے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے بینک کے جنرل مینیجر برائے KYC AML اور گروپ کمپلائنس آفیسر پیر مسعود صاحب کو۔ سر، جے کے بینک ڈائری میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ یہ میول اکاؤنٹس ہوتے کیا ہیں؟ دیکھیے جاوید صاحب، یہ میول اکاؤنٹ، میول تو ایک انگریزی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے گدا۔ جی۔ میول اکاؤنٹ یہ ہو گیا کہ جس اکاؤنٹ کو گدے کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ جی۔ گدا تو لاکھوں کا بوجھ ڈالتا ہے، لیکن خود کو تو وہی تھوڑا بہت چارہ ملتا ہے۔ جی۔
बराबर यही मामला है कुछ अकाउंट्स के साथ, कुछ हमारे कस्टमर्स के साथ, जिसको कौमी सतह पे आज पे बड़ा मसला है बैंक्स के लिए कि कुछ जो समाज दुश्मन अनासिर होते हैं तो लोगों का पैसा चोरी करते हैं, चाहे वो साइबर फ्रॉड के ज़रिए करें, चाहे वो और किसी तरीके से करें, या मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करें। वो मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और उनके थ्रू ये पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे घुमाते हैं कि जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं उनके लिए फिर ढूंढना मुश्किल होता है कि पैसा आया कहाँ और गया कहाँ, और इसका एंड यूज क्या हुआ, और उसका एंड यूज क्या हुआ। और दूसरा ये है कि फिर ये पैसा रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे आप से कि ये जो म्यूल अकाउंट्स हैं इनकी अकसाम क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं? देखिए, म्यूल अकाउंट्स जो नॉर्मल साधारण बंदे होते हैं किसी का भी अकाउंट इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि मेरा अकाउंट गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे की लालच में आते हैं, चलो अगर ये लाख रुपए ट्रांसफर करता मुझे भी 2000 मिलेंगे, लालच में आते हैं। कुछ लोगों को ये आप ऑनलाइन कुछ वीडियो दिखाते हैं, कुछ लेडीज फोन करती हैं, बाकी चीजें, जिस तरह से ये बंदे ट्रैप हो जाते हैं और वो अपने अकाउंट की डिटेल इन समाज दुश्मन अनासिर के साथ शेयर करते हैं और उसके बाद इनके ये अकाउंट गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं। सर, एक अहम बात जानना चाहेंगे कि अगर किसी शख्स का अकाउंट एज म्यूल यूज हो रहा है, चाहे उसको पता है या नहीं है, कानूनी तौर पे उसकी क्या जिम्मेदारी बनती? देखिए, कानूनी तौर पर हर किसी बंदे को एक मुल्क का नागरिक होने के नाते मुल्क के कानून का पालन करना है, जिसमें उसको पूरी तरह से ये समझना है कि क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। जो चीज़ जायज़ है वो जायज़ है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो नाजायज़ है उसमें तो उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब ये है कि अगर कोई बंदा डिलिबरेटली करता है, उससे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके ये काम छोड़ दीजिए। और अगर कोई बंदा अब बदकिस्मती से अननोइंगली मुलवस हो चुका है किसी और वजह से, उसको भी इमीडिएटली अपने बैंक के पास जाना चाहिए और नेशनल लेवल पर एक हेल्पलाइन है 1930, वहाँ रिपोर्ट करना चाहिए कि मेरा अकाउंट इस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे यहाँ पर मदद कर लीजिए। अगर किसी का अकाउंट इस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, किस तरह से इन चीज़ों को डिटेक्ट किया जाता है और क्या कोई ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जहां पुलिस कार्रवाई करता है तो उसके बाद क्या इनके खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी चाराजोई भी होती है? देखिए, चाहे किसी बंदे ने जान करके अपना अकाउंट दिया है या किसी का गलती से हुआ या कोई अंडर प्रेशर आया हुआ है या कोई किसी लालच में आया हुआ है, कानून के सामने तो सारे एक जैसे मुजरिम हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो इसलिए हर किसी नागरिक से, हर किसी बाशिंदे से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि कोई बंदा आपको ये अप्रोच करे कि आप मुझे अपना अकाउंट दे दीजिए, अपना पासवर्ड दे दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, या और कोई चीज़ चेक मांगते हैं आपसे या विड्रॉवल फॉर्म पे साइन करना मांगते हैं आपसे, तो मेहरबानी करके इन चीज़ों से गुरेज करें। अच्छा सर, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की फ्रॉड्स रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और बहैसियत नागरिक, जैसा आपने भी कहा कि जब देश में हम रहते हैं तो देश के जो कानून है उनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, तो क्या जिम्मेदारियां बनती हैं हमारी, और ऐसी फ्रॉड्स को रोकने के लिए हम किस तरह से कानून की मदद कर सकते हैं? देखिए, आज की डेट में अगर ज़्यादा देखेंगे जो ये म्यूल अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और ये जो कौम दुश्मन अनासिर इसको इस्तेमाल करते हैं, वो UPI, IMPS और MPA जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरी इस्तदा तमाम लोगों से, तमाम ग्राहकों से यही है, चाहे उनका अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक में है या किसी और बैंक में है, कि आप अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपको कभी भी फ़ोन आता है किसी बंदे से कि आपको इतना पैसा मिलेगा या आपको नौकरी दी जाएगी, तो मेहरबानी करके ऐसी कॉल इग्नोर करें, इनको कोई जवाब ना दें और उनके साथ कोई भी क्रेडेंशियल, अपना अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कोई भी चीज़ आप उनके साथ शेयर मत कर लीजिए। और अगर किसी वक्त अब आपके अकाउंट में पैसा आ ही जाता है तो आपको इमीडिएटली अपने ब्रांच में जाना चाहिए, वहाँ पर उनको बोलना चाहिए कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये किसी गलत तरीके से आए हैं, उसको स्टॉप करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए और वो पैसा आपको आगे कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। और साथ में जो मैंने आपको नेशनल लेवल पे जो हेल्पलाइन है 1930, वहाँ कॉल करना चाहिए कि मेरे अकाउंट में इस तरह पैसा आया हुआ है, ये ज़रा देख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें मुलवस नहीं हूँ, मेरी कोई लालच नहीं है, ये किसी ने डाला हुआ है इसमें, ताकि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। पीर मसूद साहब, इस अहम मौजू पे बात करने के लिए, उसके अहम नुकात को आवाम के लिए बिल्कुल आसान ज़ुबान में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, हाल ही में मुद्रा लोन के शानदार 10 साल की तकरीबात में
प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इंटरेक्शन करने वाले बारामुल्ला के मुदस्सिर हुसैन नक्शबंदी की जेके बैंक ने गुज़श्ता दिनों एक पुरवकार तकरीब के दौरान हौसला अफजाई की। मुदस्सिर नक्शबंदी वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस खास तकरीब में बातचीत करने वाले और अपनी सक्सेस स्टोरी बयान करने वाले जम्मू कश्मीर के वाहिद एंटरप्रेन्योर थे। बारामुल्ला के जोनल ऑफिस में मुनक्किदा इस फेलिसिटेशन तकरीब में बैंक के जनरल मैनेजर आशतुस सरीन, जोनल हेड बारामुल्ला इम्तियाज अहमद बट, डीजीएम क्रेडिट राकेश मगोत्रा, क्लस्टर हेड्स अब्दुल मजीद बट और शेख मोहम्मद मुजफ्फर के अलावा बैंक के दीगर आला अफसरान भी शामिल थे। इस मौके पर बोलते हुए जनरल मैनेजर आशतुस सरीन ने कहा कि मुदस्सिर की कामयाबी की दास्तान एक मिसाल है और उसके हौसले, मेहनत और लगन से दूसरों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेके बैंक का सपोर्ट ऐसे तमाम नौजवानों के लिए दस्तयाब हैं जो सच्ची लगन से कुछ करना चाहते हैं और न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के काबिल नौजवानों में ऐसी कई और कहानियां लिखने का साहस भी है और क्षमता भी है। वाज़ेह रहे कि 3 लाख रुपए के लोन से बेक माई केक नामी बिजनेस आउटलेट शुरू करने वाले मुदस्सिर के पास इस वक्त लगभग 40 नौजवान काम कर रहे हैं। जेके बैंक डायरी ने जब मुदस्सिर से बात की तो उन्होंने कुछ यूं कहा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलके ये एक बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग है। खुशकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर से कोई आप रिप्रेजेंट करते हैं एक बहुत बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पे। पूरा जे.एंड.के बैंक का जो कारकर्दगी थी उनके सामने रखी, जिस रफ्तार से जेके बैंक का काम है। स्टार्टअप था हमारा, इट्स अ स्टार्टअप एक्चुअली। उस टाइम एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट किया था हमने, बट केबी अड्डा बारामुल्ला जो हमारा है, बारामुल्ला का ब्रांच जो है उनका बहुत ही तेजी में उन्होंने वो किया था और विद इन नो टाइम जो हमने एक्सटेंशन उसके बाद फिर से एक्सटेंड किया था। एंड ये सबसे बेस्ट बात ये है कि दे डिड इट इन जस्ट 24 आवर्स। हमारी तालीम याफ्ता नौजवान है कश्मीर में, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आए, इस स्कीम का या बाकी स्कीम्स का फायदा उठाएं ताकि वो अपने घर मजबूत करें, दूसरों के घर मजबूत करें। आप आगे बढ़िए और आप जॉब गिवर्स बनिए। अपनी जो उनमें एबिलिटीज हैं वो सामने रखनी चाहिए और प्रूव करना चाहिए दैट वी कैन डू इट, डेफिनेटली वी कैन डू इट। दोस्तों, MLLS यानी मेट लोन एंड लाइफ सुरक्षा हमारे इंश्योरेंस पार्टनर मेट लाइफ का एक बेहतरीन इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो बैंक से हासिल लोन अमाउंट को एक छोटे और वन टाइम प्रीमियम के जरिए इंश्योर करता है और खुदा न ख्वास्ता लोन लेने वाले की डेथ की सूरत में उसकी सारी लोन लायबिलिटी मेट लाइफ अदा करता है। फैमिली जो वैसे ही गम में मुब्तला होती है इस इजाफी माली बोझ से बच जाती है। हमारे हजारों बल्कि लाखों ग्राहक इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं और इस स्कीम के तहत क्लेम्स का फौरी निपटारा भी किया जाता है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते जम्मू में मुनक्किदा एक सादा तकरीब के दौरान ऐसी 170 फैमिलीज के हक में 8 करोड़ 81 लाख रुपए के क्लेम वागुजार किए गए, जिससे इन फौत शुदगान के लवाहकीन ने इत्मीनान का सांस लिया। इस तकरीब की सदारत जम्मू के जोनल हेड राजेश दुबे ने की, जबकि मेट लाइफ के एसोसिएट डायरेक्टर इरफान अली जरगर, जेके बैंक के क्लस्टर हेड्स अर्जुन सिंह राठौर, चंद्रिका परिहार और दीगर अफसरान के अलावा मुतासिरा खानदानों के फैमिली मेंबर्स की एक भारी तादाद भी मौजूद थी। जोनल हेड जम्मू ने इस मौके पर कहा कि हम एक जिम्मेदार बैंक के तौर अपने क्लाइंट्स को MLLS की सलाह देते हैं ताकि इन फैमिलीज की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस वन टाइम प्रीमियम से लोनी लाइफ टाइम सुकून खरीदता है, जिससे हर एलिजिबल लोनी को फायदा उठाना चाहिए। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि जेके बैंक ने पिछले माली साल 2024-25 में कितना मुनाफा रिकॉर्ड किया था। इस सवाल का सही जवाब है 2082 करोड़। इस हवाले से हमें कई सारे ईमेल मौसूल हुए जिनमें बेशतर जवाबात सही दिए गए थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के 3 लकी विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से श्रीनगर की मिनशा अजीज, जम्मू डिवीजन से रामबन की ऋतुपूर्णा सिंह ठाकुर और लद्दाख से करगिल के मोहम्मद अब्बास। इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट कीजिए आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा जेके बैंक रेडियो डायरी का पहला एपिसोड कब नशर किया गया था। आपके जवाबात हमें 24 मई शनिचरवार शाम 5 बजे तक हमारे ईमेल आईडी पर मिल जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगले इतवार तक। जब तक के लिए जुड़े रहे हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के साथ और किसी भी जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।